Yes, sir. Now it is visible. अभी No, sir. Yes, ma'am. Yes. विजिबिलिटी नहीं है? Sir, नहीं, it sir, is नहीं. visible, but it is cutting. हाँ, It is visible, but the circuits are like Are hard. you out of It's number? cutting. It is zoomed. The screen is cutting. अच्छा ठीक है. Sir, it was perfectly visible when you clicked on slideshow. मैं जानता हूँ रे. कैसे है ना, बाकी स्टूडेंट्स को अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे वो स्टेप लेना जरूरी है. मुझे अपने मोबाइल से दिख जाता है कि सही है प्रेजेंटेशन करके. नो इशू. Only 11:08, ma'am. Okay, now please check. Yes, sir. Okay, जिन लोगों को पहले नहीं देख रहा था अभी सही से दिख रहा है होपफुली. So let us start. Yes, sir. Yes, let us start with the lecture. So मैंने आपको जैसे कहा कि ये एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल दिया गया है. अब ये बाकी न्यूमेरिकल से आपका हटके है. अब तक हम लोग जो न्यूमेरिकल्स देखे, जैसे ये आपका एक डिफिकल्ट लेवल यहाँ तक पहुंच चुकी है. यहाँ पर 3 लूप्स थे, इनफैक्ट 2 ही लूप्स थे. ओके, लेकिन डिफिकल्टी लेवल आपकी धीरे धीरे बढ़ी है. जैसे यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया, ये हम लोगों ने जनरल सर्किट देखा था. ये आपका 6 और 7 न्यूमेरिकल था 2 लूप्स के साथ. ये आपका एक 2 लूप्स के साथ था, लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज्यादा थी, है ना. और ये एक आप लोगों को 9th वाला न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क दिया था, और 9th का आंसर यहाँ पर है. 8th का आंसर मैंने आप लोगों को इक्वेशंस लिखने के बाद कहा था कि you have to complete the numerical. So the expected answer for G12 is this one. I have to solve Z11 and Z12, yet I have also not solved. So I just do it, and in Wednesday's lecture I'll share the answer to this question. Remaining part of it will be shared on Wednesday. So at least keep a note of it. But on Wednesday, all of you have to complete whatever the homeworks are given. Now this is your 10th numerical. यानी यहाँ पर आपका थोड़ा सर्किट अलग है. Again you have a ladder network. Ladder means one more step is added into it. So like you see, यहाँ पर आपके 3 loops are present. Here there are 3 loops. So you have to solve the network for 3 loops. So I just name those loops. Let us consider, यहाँ पर आप देख रहे हो, this is your loop 1. Then this one is loop 2. Then this is loop 3. So here there are 3 loops, 1, 2 and 3. Okay, so now we have to attempt the numerical. अब जो स्टेप्स हम लोगों ने इसके पहले अप्लाई किए थे, वह स्टेप्स से थोड़ा डिफिकल्ट होगा न्यूमेरिकल. दूसरा पॉइंट, जैसे हिमांशु ने कहा था कि अगर हम लोग मेश एनालिसिस लगाते हैं तो जैसे हिमांशु ने कहा था मेश एनालिसिस के लिए, सो सेम मेश एनालिसिस के साथ हम लोग चलते हैं. अब यहाँ पर आपको I2 is equal to 0, ये सिचुएशन है. I2 is equal to 0, right? So first in the given numerical that you have to have the situation I2 equal to 0. Why I2 equal to 0 we are taking? Because of the open circuit. This particular circuit is open circuit. This side or this port 22 dash is an open circuit, and if it is open circuit you have to take I2 equal to 0. अब आप कहोगे कि सर क्या I2 सर्किट में आ सकता है? यस, I2 सर्किट में आ सकता है अगर आपको ये इस तरीके से सर्किट दिया हुआ है. यू कैन सी दिस इज अनदर लेवल ऑफ न्यूमेरिकल जहां पर आपको एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड दिया हुआ है, and therefore you cannot say that I2 equal to 0 because the resistance is present. Okay, so let us go with this. अब आपके पास है 3 लूप्स, लूप 1,
loop 2 and loop 3, where I2 equal to 0. So I have done with this I2 equal to 0. Why we are saying I2 equal to 0? Since output port is open circuit. यानी यहाँ पर आपका output port open circuit. So therefore we are saying that it is I2 equal to 0. Okay. Now let us begin. So now what I am going to apply KVL loop 1. So ये simple methodology आप लोग already जानते हो. So can you just give me the equation to this loop 1 applying KVL? अगर आप KVL loop 1 में apply करते हो तो okay, how many elements are present in loop 1? How many elements are present in loop 1? Two. Yes, 2 elements are present, but voltage source is connected with input port. Input port is connected with a voltage source V1. So it means we have 3 elements. One is V1, then capacitor and resistance. So let us write the expression. Just change. V1 is equal to, आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा, V1 is equal to. अब यहां पर इक्वल टू साइन दे दिया, इस वजह से मैं माइनस साइन की जगह प्लस साइन लिख रहा हूं, 1/s बराबर. उसके बाद उस 1/s से कितने करंट्स पास हो रहे हैं? दिस इज योर 1/s. 1/s से कितने करंट्स पास हो रहे हैं? एक हो रहा है I1 और दूसरा हो रहा है लूप 3 से I3, और दोनों के ओरिएंटेशंस उल्टे हैं, अलग है. सो देयरफॉर यू हैव I1 minus I3. Okay, plus another element is 1 ohm resistance, but through 1 ohm resistance you have 2 currents flowing and the direction of both the currents is same, so therefore it is I1 plus I2. So as you students said there are 2 elements present, it is correct, it is 1/s and 1 ohm, 2 elements, but the third element is a voltage, so therefore you are getting this equation. Let us rearrange the terms and write in this pattern. So now I do have 1 upon s I1 plus 1 I1. So what I can write is 1 upon s plus 1 into I1. Another term is I2. So I just directly write I2. Then third term is minus I3. Right? But as we know I2 equal to 0, directly put that I2 equal to 0 and rewrite the expression. Or otherwise also, if you want to consider in the equation itself, that also can be done. So 1/V1 is equal to, now I just take LCM, cross multiply, and I just write the expression for this. So can you just check this whether it is correct or not? S LCM, and therefore I am getting s plus 1 upon s, which is I1, I2 equal to 0, and therefore I am writing, rearranging the terms, rewriting the equation. So this is my equation number 1. So after KVL application to loop 1, I am getting equation number 1. All of you please write down fast. All of you write down fast. Okay, hopefully done. So now loop 2, this is your loop 2. Can you tell me the equation to loop 2? Equation to loop 2. Yes, anyone? I2 plus I3. Okay, I2 plus I3 Into 1 upon s. Very good. Plus I1 plus I2. I1 plus I2 into 1. Okay, Is equal to is equal to V2. V2. is equal to V2, correct. So I just write in this pattern.
V2 is equal to this. Now rearrange the terms considering V2, जैसे यहां पर हम लोगों ने कहा था, सो यहां पर मैं I just write it here, since I2 equal to 0, इक्वेशन 1 में आप लोग या इक्वेशन 1 के बाद भी लिख सकते हो I2 is equal to 0. So now considering that I2 equal to 0 again, now I just write the expression taking I1 first. I1 मेरा पहला आ रहा है, so V2 is equal to I1 plus 1 upon S I3. Okay, so this is equation 2 since I2 equal to 0. Since I2 equal to 0. Okay, now tell me for loop 3. I3. Yes. I3 plus. I3 plus 1 by S I3 minus I1 plus 1 by S I2 plus I3 plus I2 equals to 0. ओके, इसका मतलब 3 एलिमेंट्स होने की वजह से आपको वो इक्वेशन मिलेगा. सो आपने कहा 1 into I3, आई एम जस्ट टेकिंग 1 into I3 फर्स्ट, देन प्लस यू सेड I3 plus I2 into 1 by S, सो I3 plus I2, यानी आपका ये वाला राइट हैंड साइड वाला जो कैपेसिटर है into 1 by S, ये भी आपका 1 by S है. प्लीज रिमेंबर दिस इज योर 1 by S ओनली, प्लस I3 minus I1 into 1 by S, बराबर, इक्वल टू 0. करेक्ट है ऐश्वर्या? यस सर. ठीक है. सो नाउ टेकिंग I3 टर्म्स कॉमन, हाउ मेनी I3s आर देयर? दिस इज 1 I3, 1 by S I3, 1 by S I3. सो यहां पर मैं ब्रैकेट में लेता हूं 1 प्लस 1 by S प्लस 1 by S, ये हो गया मेरा I3 वाला टर्म. ठीक है. नाउ I2 तो 0 है, सो I2 को मैं टर्म कंसिडर नहीं करता. सो I3 हो गया, I3 I3 I3, ये 3 I3 हो गए, I2 0 हो गया, एंड दिस वन माइनस 1 by S I1, सो माइनस 1 by S I1 is equal to 0. Okay, since I2 equal to 0, since I2 equal to 0. ओके, अब मैं यहां क्या करता हूं, व्हाट आई टेक, आई जस्ट टेक S एज LCM. तो S अगर मैं LCM लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, S प्लस, बराबर है. S LCM आने के बाद ये होगा आपका 1, ये हो गया 1, सो 1 plus 1 2, सो इट मींस आई एम गेटिंग S plus 2 अपॉन S into I3, ओके, इज इक्वल टू 1 by S into I1. ओके, अब यहां पर आपका SS कैंसिल हो जाएगा. So now what I do, I just write the expression for I3. हमें क्या चाहिए उस पर डिपेंड करता है. What I need is, I need the ratio of V2 and V1, V2 by V1. So I just write the expression, I just replace I3 in both the equations. I3 in both the equations. So what I am getting in this is, yes, I3 S plus 2 बराबर है, यहाँ पर आपका S plus 2 I3 आ रहा है, इक्वल टू I1. ओके, चलो ठीक है. सो आई जस्ट राइट इट हियर, I3 into S plus 2 equal to I1. So this is my equation 3. This is my equation number 3. Just write down up to this point. अब यहां पर अगर आप इक्वेशन 3 में I3 के टर्म्स में लिखे या I1 के टर्म्स में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इन फाइनल आंसर यू नीड V2 upon V1. So ultimately we have to arrange these equations, equation 1, 2 and 3 in such a manner so that we can find the ratio of V2 upon V1. Are you getting my point? So ultimately you need this V2 upon V1. हेलो सर. Yes. हेलो सर, हमने यहाँ पे सिर्फ केवीएल ही लगाया है ना, केवीएल केसीएल केवीएल ऐसा फॉर्म है ना वो? हाँ, KVL KCL KVL ऐसा एक फॉर्मेट है.
लेकिन वो स्टेप्स दिए हैं जब हमारे पास एक लैडर नेटवर्क उस तरीके से रहेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया कि जैसे हिमांशु ने भी एक पॉइंट कहा था कि सर हम लोग सिर्फ अगर मेश एनालिसिस लगाते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, और हमारे पास उस पर्टिकुलर सर्किट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होने की वजह से व्हाट वी डिड इज, instead of applying that KVL, KCL, KVL in those method, we are just applying Kirchhoff's voltage law, that is mesh analysis, in all the loops. And then anyhow what we have to do, we have to rearrange the equations in such a manner so that we can find the ratio, that's all. So ultimately you can solve by any method. उस दिन भी हिमांशु से मैंने वही कहा था कि आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Even in previous numericals, if you apply KVL only, you will get the same answer, no issue. Okay, so let us solve further. अब आपके पास ये तीन इक्वेशंस आ चुके हैं। नाउ व्हाट आई डू, पुट इक्वेशन सी। देखो आपके पास V1 कहां पर है, इक्वेशन 1 में है। V2 कहां पर है, इक्वेशन 2 में है ना। तो एक आप एक ऐसा कर सकते हो कि G12 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, और ये सारे टर्म्स आप चलो और उसको सिंपल करते हैं ना कि एक एक पुटअप करने की जगह व्हाट आई डू इज, एनीवेज आई नीड G12, बराबर है ना, और G1 को 2 का उन्होंने इक्वेशन दिया हुआ है V2 अपॉन V1। सो नेक्स्ट स्टेप, चलो आपके लिए सिंपल करता हूं। नाउ वी हैव टू फाइंड G12 ऑफ S इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, V2 ऑफ S अपॉन V1 ऑफ S, बराबर। अब V2 कहां पर है आपके पास, इक्वेशन 2 में, और V1 कहां पर है, इक्वेशन 1 में। सो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, 2/1। सो इक्वेशन 2/1 आपको करना होगा, यू हैव टू डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 लिखते हैं, व्हाट इज दैट, I1 प्लस 1/s I3। सो इट इज I1 प्लस 1/s I3, ये आपका इक्वेशन 2 है। उसके बाद इक्वेशन 1 है S प्लस 1 अपॉन S I1, S प्लस 1 अपॉन S I1 बराबर माइनस I3, एंड दिस इज योर इक्वेशन 1। ओके, नाउ अब ये आपके पास एक रेशियो आ गया। आपके पास इक्वेशन 3 है जिसमें इफ यू रिप्लेस दिस I1 बाय दिस पर्टिकुलर टर्म, तो आपको इक्वेशन में क्या चेंज मिलेगा वो देखते हैं। सो व्हाट आई डू, जस्ट पुट a value of, put the value of I1 from equation 3 in above ratio। वो क्यों कर रहे हैं, अगर हम लोग I1 का इक्वेशन इसमें पुट अप कर देते हैं, I1 का इक्वेशन क्या है, S प्लस 2 इंटू I3। सो न्यूमरेटर आपका क्या होगा देखते हैं। सो देयरफॉर G12 ऑफ S, कैपिटल S इज इक्वल टू, सो इट इज S प्लस 2 इंटू I3 प्लस 1 अपॉन S I3 अपॉन I1 को आप रिप्लेस कर रहे हो, सो S प्लस 1 बराबर अपॉन S इंटू I1 को रिप्लेस कर रहे हो, S प्लस 2 इंटू I3 माइनस I3। तो यहां पर पूरे रेशियो में आपका टर्म कौन सा प्रेजेंट है, I3। सो इट मींस आई कैन टेक I3 कॉमन, तो आपको न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, S प्लस 2 प्लस 1/s, I3 कॉमन निकल गया। डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, यू गेट S प्लस 1, S प्लस 2 अपॉन S बराबर है अपॉन S माइनस 1 इंटू I3। अब मुझे बताइए क्या होगा, यहां पर न्यूमरेटर में I3 है, डिनोमिनेटर में I3 है, बोथ गेट कैंसल्ड एंड देयरफॉर यू गेट द आंसर इन ओनली S टर्म्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, नाउ व्हाट आई डू, S को मैं एलसीएम लेता हूं, यहां पर मैं S का एलसीएम लेता हूं। तो S का एलसीएम लेने के बाद मुझे न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 1 बराबर डिवाइडेड बाय S। S मैंने एलसीएम ले लिया, सो S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 1
अपॉन एस पूरा डिवाइडेड बाय एस, पूरा डिवाइडेड बाय एस अपॉन, यहां पर भी मैं एलसीएम एस लेता हूं। अब अगर मैं एस एलसीएम लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई गेट एस स्क्वायर प्लस 2s, सॉरी 3s प्लस 2, राइट ना, एस स्क्वायर 1s 2s 3s प्लस 2 बराबर माइनस s, ओके, एंड दिस कंप्लीट इज अगेन डिवाइडेड बाय s, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप, अब आपको मिलेगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, क्योंकि ये s एंड ये s गेट कैंसिल, सो आपको मिलेगा न्यूमरेटर में ये एंड इन डिनोमिनेटर, अब यहां पर देखिए 3s है, यहां पर माइनस s है, सो व्हाट यू गेट इज s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। सो दिस इज व्हाट द आंसर फॉर G12, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ओके। यहां पर मेरे पास 3s कैसे आ रहा है वो देखना पड़ेगा। ओके, एक बार चेक करें कहीं गलत तो नहीं हुआ कुछ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -1 था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में s यहाँ चले गए, सो s स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 यानी 3s प्लस 2 करेक्ट है, 3s माइनस s इज 2s प्लस 2s प्लस 2, फाइन। प्लीज चेक दिस आंसर whether all of you are getting this or not. See, I think it's better अगर आप खुद से भी उसको एक बार सॉल्व करके कोशिश करें, so that you will find the answers. दाबून देना। Okay, so all of you done with this numerical? Any doubt? Sir, getting the same answer. So मुझे मेरे नोट्स में एक बार चेक करना पड़ेगा because I got s square plus 3s plus 1, s square plus 3s plus 1 in denominator. तो वो एक बार डिनोमिनेटर में s square plus 3s plus 1 क्यों आ रहा है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा मैंने अलग यूज किया मेथड। I put equations 3 in, then equation 3 in 2, then into 1, so उस तरीके से उसको सॉल्व करके किया है। सर हेलो, हाँ बोलिए ना सर इक्वेशन 1 रॉन्ग है सर, इसीलिए आंसर अलग आ रहा है। क्या Yes, बोले? sir. Sir, loop one. इक्वेशन 1 गलत है सर। इक्वेशन 1 गलत है। Yes, sir. वहाँ 1/3 1 by s I3 चाहिए। 1 by s, yes, 1 by s चाहिए सर। हाँ, this is 1 by s I3, correct. So ये होगा आपका 1 by s I3. So 1 by s I3 यानी आपका इक्वेशन यहाँ पर चेंज होगा 1 by s I3. आप लोग सभी करेक्ट करें, सिर्फ ये छोटा सा चेंज है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1 by s into I3 होगा, यहाँ पर आपका 1 by s into I3 यानी I3 by s आ गया, 1 by s into I3 इक्वेशन 1 आपका हो गया इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर भी आपका 1 by s into I3 रहेगा। ओके, सो इसका मतलब आपका 1 by s, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया दिस, यानी यहाँ पर आप लिखोगे फिर 1 by s into I3 बराबर। उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे फिर 1
अपॉन एस, 1 अपॉन एस यहां पर आप लिखोगे। 1 अपॉन एस लिखने के बाद यहां पर आपका एलसीएम आ जाएगा एस। एलसीएम अगर एस आता है तो ये वाली टर्म, यस एस, वेरी गुड। बहुत ही छोटा करेक्शन है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। सो यहां पर आपका रहेगा 1। अगर यहां 1 रहेगा तो यू विल गेट 2 - 1 यानी 1। सो यस, यानी मेरा आंसर जो मेरे नोट्स में है वो और ये सही है। सो आई एम गेटिंग s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1, करेक्ट। यस, नाइस टू हियर यू। Still we have 10 minutes up to 11:30. सबका लिखना हो चुका है? किसी का लिखना बाकी है? Okay, shall I take next numerical? Yes sir. हाँ, ओके। सो ये है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल फॉर द रेजिस्टिव ब्रीज्ड टी नेटवर्क शोन इन फिगर 10a। फाइंड V2 upon V1, V2 upon I1, I2 upon V1 एंड I2 upon I1। यहां पर भी हम लोग इसके पहले जो हम लोगों ने अप्लाई किया मेश एनालिसिस, वही यहां पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। Okay, so you wrote the question for the resistive breached network, breached T network shown in figure 10a. Find V2 upon V1, V2 upon I1, I2 upon V1 and I2 upon I1। अब ये तो तय है कि यहां पर आपको पूरा रेजिस्टिव नेटवर्क दिया है, ब्रीच्ड टी नेटवर्क। ओके, तो टी नेटवर्क दिया है, पूरे सारे रेजिस्टेंस यहां प्रेजेंट है। तो इसका मतलब आपको जो भी रेशो मिलेगा दैट रेशो विल बी कांस्टेंट। जिसे हम लोग कहते हैं ना, वोल्टेज इज से 230 वोल्ट इनपुट एंड आउटपुट इज 115 वोल्ट। तो आपको अगर V2 by V1 निकालना है तो आप क्या करोगे, 115 upon 230। सो योर आंसर विल बी 1/2, दैट इज 0.5। सो उसी तरीके से यहां पर आपको रेजिस्टेंस के कांस्टेंट्स देने की वजह से कांस्टेंट आंसर मिलेगा, बिकॉज रेशो हैज नो यूनिट। सो आपको जो भी आंसर मिलेगा, जो भी रेशो मिलेगा चारों का, इट विल बी अ कांस्टेंट। ओके, सो शैल वी स्टार्ट one by one? Let us hear it. Can you tell me the V2? V2 is the voltage. V2 is the voltage across 1 ohm। और यहां पर उन्होंने I2 0 नहीं कहा है। I2 0 क्यों नहीं है? Because 1 ohm resistance is present in the network। दूसरा पॉइंट, उन्होंने इस रेशियो में I2 upon V1 और I2 upon I1 पूछा हुआ है। इसका मतलब यहां पर I2 अगर आपने 0 ले लिया तो ये रेशियो 0 हो जाएगा। So therefore that is what the point is here। You cannot say that I2 is 0। and second point is here the load, that is output port, is connected with the load resistance of 1 ohm। यहां पर load resistance 1 ohm आपका output port पे connected है। So that indicates that there is I2 present, and here I2 is not equal to 0। So in this particular point, only for your reference, please write down I2 is not equal to 0 as output port, as output port। अब आउटपुट पोर्ट आप नाम क्या देते हो, 2 डैश is connected with load resistance
of 1 ohm. Load resistance of 1 ohm. So keep a note of it, that I2 is equal to not 0. I2 is not equal to 0. Why? Because the output port 2 dash is connected with some load resistance. Whereas in rest of the cases, the load resistance is not given. Whereas in the rest of the cases, the load resistance is not given. And as I said in the starting of the lecture, that your sessional 2, if it is conducted, you will find some tough numericals. So I'll put unsolved numerical from the book, reference book, at least on this particular topic where the load resistance is present. Okay, I think you have done with this. Now, all of you are attentive, concentrating on the numerical. Can you tell me the value of V2 now? Only the V2. V2 is the voltage across this load resistance 1 ohm. So can you tell me the value of V2? I2. Yes, V2 is equal to I2. Why V2 is equal to I2? कौन सा हम लोग लॉ यहाँ पर यूज कर रहे हैं? V is equal to I into Ohm's law. Ohm's law. I is equal to yes, I into R, and I का value is I2 and resistance का value is 1 ohm. So V2 is equal to I2. Write this as expression 1. V2 is equal to I2 expression 1. Okay. Now let us start solving this. अब यहाँ पर सबसे पहले KVL fast. KVL loop 1. KVL loop 1 fast. बताइए जल्दी जल्दी बताइए अभी. V1 equal to हाँ 1.5 I1. वेरी गुड 1.5 I1 यही मुझे एक्सपेक्टेड था. 1.5 I1 यस जल्दी. Plus 0.5 I2 minus I3. 0.5 I2 minus I3 परफेक्ट एकदम. दिस इज माय एक्सप्रेशन 2. 1.5 minus I3 expression 2. Yes, loop 2. That saves our time simply. क्योंकि ये 7 मार्क के लिए न्यूमेरिकल है. 7 मिनट में सॉल्व हो जाए तो बाकी समय मैं बाकी न्यूमेरिकल्स को दे सकता हूँ. 2.5 घंटे में पेपर नेटवर्क एनालिसिस. स्टूडेंट उठ गया, सब लोग देख रहे हैं, वाओ क्या हो गया. नेटवर्क जैसा सब्जेक्ट 2.5 घंटे में खत्म हो रहा है. 6 क्वेश्चंस. चलो लुक 2 फास्ट. लुक 2 ये वाला 0.5 I1 0.5 I1 ओके plus 2.5 I2 plus I3 equal to 0. ओके. आप कह रहे हो कि 0.5 I1 और उसके बाद आपने कहा 2.5 I2. 2.5 I2. अच्छा 2.5 I2 की जगह थोड़ा ध्यान रखना. 2.5 I2 की जगह इफ आई टेक 1.5 I2 देन, और ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे वोल्टेज मैंने लिखा हुआ है V2 इक्वल टू I2 वो मैं लिख लेता हूं ना. Okay. हाँ. सो 0.5 I1 ध्यान से देखना. अब यहां पर मैं सिर्फ 1 और 0.5 को कंसिडर कर रहा हूं. सो आई एम राइटिंग 1.5 I2 और फॉर दिस 1 ओम रेजिस्टेंस का जो I2 है दैट I2 इज रिटन एज V2. Why? Because I2 is equal to V2, so therefore it is equal to plus V2. प्लस लिखना पड़ेगा और उसी इक्वेशन में आएगा, इक्वल टू में नहीं जाएगा. बराबर है. सो प्लस V2 होपफुली. यस प्लस V2. उसके बाद Plus I3. प्लस I3 है 3 या माइनस I3. ओके प्लस I3 Is equal to 0. इज इक्वल टू 0. ओके अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं. इम्प्लाइज सो आई टेक V2 ऑन राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, माइनस V2 इज इक्वल टू आई एम गेटिंग 0.5 I1. ठीक है 0.5 I1 प्लस 1.5 I2 प्लस I3. This is my expression number 3. Okay, now loop 3 fast. Only 5 minutes left. यानी मेरे घड़ी के हिसाब से, I don't know about the time. Yes, loop 3. Ma'am, period is over. Minus I1 plus I2 plus 4 I3. Okay, minus I1 plus I2 plus 4 I3. पक्का 4 I3? Yes. Thank you, ma'am. Dank, ma'am.
Okay, 2, yes, 4i3, very good, is equal to 0. 0. Is equal to 0. Okay, fine. Just a second. Okay, now this is our equation 3, right? Hello. अच्छा ठीक है ना, चालेल बेटा, मी बोलतो फोनवर, क्लास चालू. Okay, so this is our I3, this is our equation 3, this is our equation 4, equation 4. ठीक है, चलो. So आपके पास 4 इक्वेशंस आ चुके हैं and you have to find the ratios. और तो कोई इक्वेशन नहीं बन सकता, you have to find the ratio V2 upon V1. कहां से आ सकता है मेरे पास V2 upon V1? V2 है मेरा इक्वेशन 1 और V1 है मेरा इक्वेशन 2. सो अब V2 इक्वेशन क्या है? V2 इक्वल टू I2. बात समझ में आ रहा है? समय कम है, इस वजह से मैं आप लोगों को यहां पर हिंट दे देता हूं. यहां पर मैं आपको हिंट देता हूं. सो आई जस्ट सॉल्व दिस, यानी यहां पर आपको मैं एक सॉल्व करके बता देता हूं. V2 अपॉन V1 मुझे पहला रेशियो चाहिए. अब V2 कौन सा है? इक्वेशन 1. V1 कौन सा है? इक्वेशन 2. और यही यूनिक मेथड आप लोग यूज करना जब आप यूनिवर्सिटी में सॉल्व करोगे. 1/2. अब 1 क्या है? I2, बराबर. इक्वेशन 1 है I2 और इक्वेशन 2 क्या है? 1.5 I1 बराबर है प्लस 0.5 I2 माइनस I3. कोई बता सकता है मुझे क्या करना होगा ताकि मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू इसकी मिले? I have to replace this I1 and I3. I have to replace this I1 and I3 in terms of I2. यानी ये जो I1 का वैल्यू है somehow I have to get here as I2, and in this I3, that is I have to replace that I3 by I2, I1 by I2 from remaining 2 equations, that is equation number 3 and equation number 4, so that I can get the constant value for V2 upon V1. और क्यों? क्योंकि यहां पर I2 न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर अगर I2 आ जाता है तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर I2 कैंसिल होने के बाद मुझे 1/something एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा. क्या ऐसा कुछ हम लोग प्रीवियस न्यूमेरिकल में कर चुके हैं? हाँ, इस वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था? G12 इक्वल टू V2 ऑफ S अपॉन V1 ऑफ S, इक्वेशन 2/1. तो हमने V2 का इक्वेशन यहां पुटअप किया, V1 का इक्वेशन यहां पर पुटअप किया. अब मुझे ये 2 इक्वेशन, यानी इक्वेशन न्यूमरेटर में I1 I3 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में I1 I3 दिख रहा है. मैं ऐसे ही नहीं रख सकता ना. दैट इज नॉट द फाइनल आंसर. व्हाट आई डिड, I replaced I1 by I3 using equation 3. So I1 के वैल्यूज दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में I1 के वैल्यूज पुट अप किए, and then I got the expression in terms of I3 only. Then I3 get cancelled, and finally I am getting the expression in terms of S. अब यहां पर आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म S प्रेजेंट था, इस वजह से आपको वहां पर S मिल गया. लेकिन इस वाले न्यूमेरिकल में क्या आपके पास S प्रेजेंट है? नहीं है. यू हैव ओनली कांस्टेंट वैल्यू. द कांस्टेंट ऑफ I2 इज 1 and the constant of I1 is 1.5, I2 0.5, I3 -1. So if you have numerator I2, you make this equation you arrange this equation in terms of I2 only by replacing I1, by replacing I3. अब I1 और I3 रिप्लेस कहां से करोगे? You can replace it from equation 3 and equation 4. So replace I1 and replace I3 from equation 3 and 4, rearrange the equation, you will get the final answer. Okay, so that's all from my side.
Same way you have to find V2 upon I1, I2 upon V1 and I2 upon I1. So it is expected that you people will do that. Okay, we'll see the answer to this question. If I get extra class tomorrow, I'll try to do it tomorrow. Okay. We can do one thing. If possible, I'll take Mendes sir's tomorrow's lecture, because Mendes sir is in a comfortable zone. So अगर मैं कल का extra lecture ले लेता हूँ तो ये कल आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, सो दैट फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड, जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था, वेडनेसडे ऑनवर्ड्स हम लोग पोल जीरोस पे डिस्कस करेंगे. वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 लेक्चर में आपका पोल जीरो खत्म हो जाएगा, सो दैट लास्ट यूनिट हम लोग नेक्स्ट वीक में शुरू कर सकते हैं. एंड इट ऑल्सो नीड्स हार्डली 4 hours or 5 hours टू कंप्लीट द कंप्लीट यूनिट. दैट फुल यूनिट कैन बी कंप्लीटेड विद इन 4-5 hours. ठीक है. So I'll try to take tomorrow's Mendes sir's lecture, and if he allows me to take, then I'll take it at 9 o'clock. 9 to 10 मैं लूंगा आपका क्लास. 9 to 10. Please remember, 9 to 10 and 10 tomorrow morning. 9 to 10 tomorrow morning. If Mendes sir allows me. Okay. Fine. So that's all with the lecture. Yes. सर प्रीवियस न्यूमेरिकल में अगर I2 0 नहीं है तो सॉल्व नहीं कर सकते क्या? नहीं, सॉल्व कर सकते हैं. ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना. ये देखो, I2 को वैल्यूज, I2 की वैल्यूज हैं या फिर जो भी है, I2 को रिप्लेस कर रहे हैं, I2 कैंसिल होगा. जैसे इस न्यूमेरिकल में रेशियो में I2 कैंसिल होगा, उसी तरीके से यहाँ पर भी कहीं ना कहीं I2 आपका कैंसिल हो जाएगा. नहीं सर, ये वो सर्किट तो थोड़ा अलग है ना उसमें. हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है ना. हाँ, तो कोई नहीं ना. यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर होता, सपोज लोड रेजिस्टेंस होता तो I2 प्रेजेंट होता. अगर लोड रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर उन्होंने ओपन सर्किट शो किया हुआ है, इट मींस इट इज ओपन सर्किट एंड हेंस I2 इक्वल टू 0. तो सर I1 भी 0 होना चाहिए, वो भी ओपन है. नहीं बेटा, वहां पे तो सप्लाई दिया ना आपने. अच्छा. हाँ, सप्लाई दिया, और सप्लाई देने के बाद इस I1 के लिए कौन सा लोड मिलेगा? 1/s कैपेसिटर मिलेगा और 1 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा. आपका और डाउट यहां पर क्लियर हो जाएगा. जैसे यहां पर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल आपका 3 बार पूछा गया है और कुछ अलग अलग तरीके से तीनों बार पूछा है, तो इसका मैं करेक्शन कर लूंगा. यहां पर आप देखिए, यहां पर I2 उन्होंने इस पॉइंट पे नहीं दिया है. देख रहे हो सब? आपको दिख रहा है I2 V2 के बाद नहीं दिया हुआ है उन्होंने. I2 इस रेजिस्टेंस के बाद दिया हुआ है. इसका मतलब ये I2 प्रेजेंट है न्यूमेरिकल में. This I2 is not equal to 0. And expecting what? यानी यहां पर लोड रेजिस्टेंस क्या हुआ? लोड रेजिस्टेंस इज 1/6 ohms. लोड रेजिस्टेंस इज 1/6 ohms. ऐसा है. मतलब ये प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसा ही है, मतलब सिर्फ V2 मतलब बाहर टर्मिनल्स में दिखाया है ना. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है. ठीक है. So just attend your roll call. Like pen देगा. Pen. Just a second. नहीं. Okay, roll number 1 to 5. 1, 2, Okay. 3. Roll number 2. Okay. 3. So 3 present. हाँ, 3 लगा दिया. 4, 5 में से कोई है और? ठीक है. ओके, उसके बाद 6 to 10 में? Roll number 6. Then okay, roll number 11 to 15. 11. 11, 12. 12, 14. 13. 13. 13. हाँ, 13 हो गया. 14 14. हो गया. 15. 16 to 20. 16. 16. 17. 17. 20. 20. 20. 20. 19. 19. Okay, 21 to 25 में? 23 sir. 22. 23.
23%. 22 23 हो गया. नेक्स्ट. ओके. 21. 21 25 26 to 30. 26. 27 present. 27 28. 28 29. 29 31 to 35. 34. 34 32. 32 33. 33. Okay. 36 to 40. 38. 38 39. 39 40. 40 41 to 45. 41. 41 44. 44 45 sir. 45 46 to 50. 47. 47 48. 48 Sir, 50. 50 51 to 55. Sir 51. 51 Sir 53. 53 55. 55 56 to 58. Sir, 56. 56 56 present sir. 56 58. 58 57. 57. ठीक है फ्रेंड्स. नाउ यू कैन ज्वाइन योर नेक्स्ट क्लास.